Hello, my dear learners. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number with chapter 6. अब हम chapter 6 पे आ गए हैं. So chapter 6 का नाम है The Age of Reorganization. ये किसकी एज है? Age of Reorganization. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या हुआ? Why is the emperor that follows the modern empire sometimes called the Age of Reorganization? क्यों कहते हैं? ये क्या था? What were the values or principles that guides the emperor of that period? How did the foreign invader assimilate into Indian society and contribute to culture influence? ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो वही है, Bhavisha and Dhruv had recovered their journeys to the modern empire and were eager for a new adventures. They decided to use Itihas once again and found themselves in a different historical period. They discovered a collection of artworks, each quite unique. This made them wonder, could these artifacts belongs to different kingdoms rather than a single one? So आइए देखते हैं क्या है पूरा का पूरा. So let's begin. There is a limited information available about Ashoka's successor. अशोका के बाद कौन थे वो बड़ी कम इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस चीज की. ठीक है. However, it is widely believed that the last modern empire was assimilated around 185 BC by the commander-in-chief Pushpamitra Sunga. This event led the disintegration of modern empire. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? Last modern empire was assassinated by Pushpamitra Sunga. So इस इंटीग्रेशन के बाद मॉडर्न एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया just about 50 years after Ashoka region, as mentions earlier में मेंशन किया जाता था. आओ आके देखते हैं इस पीरियड के टाइम पे. ये देखो सुंगास, अब यहाँ पे पढ़ेंगे आपका सुंगास, आपका सतवनास, ठीक है, चेड़ास, चोलास, पांड्यास, इन सबका टाइम पीरियड क्या था. चलिए सबसे पहले सर्ज ऑफ सुंगास कैसे आए. ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो प्रोमिनेंट डायनेस्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी थी. देखो यहाँ पे इधर की साइड लिखी है डायनेस्टी फ्रॉम विद इन द सब कॉन्टिनेंट, दैट इज सुंगास, चेडीस, सतवनास, चोला, चेरास, पांड्यास. और यहाँ पे क्या था? डायनेस्टी फ्रॉम आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट, वो इंडो ग्रीक थी, शाकास थे एंड कुशानास थे. ठीक है, तो आओ देखते हैं सर्च ऑफ सुंगास कैसा शुरुआत हुई इनकी. पुष्पमित्रा Sunga established the Sungas dynasties with rule over parts of northern and central India. To assert this authority as a powerful ruler, he performed the Ashwamedha Yajnas, a significant Vedic rituals through his empire were smaller than that of Mauryans. That we can compare this with the map also. He managed to protect it from potential invasions and maintain peaceful relationship with the Greek after an initial military campaign against them. So उन्होंने किस तरीके से अपना टेरिटरी को मेंटेन किया. Now we have this period saw a revival of Vedic rituals and tradition, yet other philosopher ideas continue to thrive. Sanskrit becomes a preferable language for the philosopher and literary writing के लिए संस्कृत को यूज किया गया. And we have studies जो we have the yoga sutras in the physical education and well-being classes भी grade तक 6th grade तक कराई गई. ठीक है, फिर देखो ये इस तरीके का यहाँ पे आर्किटेक्चर रहता है. देखो रेलिंग, कार्विंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स की पिक्चर्स, इस तरीके से यहाँ पे मेल फीमेल्स के फिगर्स बनाया करते थे. ये देखो पूरा का पूरा इस टाइम पे आपके पास आर्किटेक्चर था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो आप पैनल फ्रॉम द और वी हैव भरहुट सुत्पा का ये था. आओ देखो ये था सुंगास का. अब ये सतवनास का क्या टाइम पीरियड था, इसमें क्या थी. ये देखो एक ये कॉइन पे लिखा है सतवनास कॉइन बेयरिंग द इमेज ऑफ सी फारिंग शिप्स विद 2 mates के साथ ये बनाया गया है. From the limited information available, it appears that the Sungas engaged in conflict with several neighboring regions, possibly including the Satavahanas. The Satavahanas ruled large areas of Deccan from 2nd BCE onwards, located to the south of Sunga's empire. They are sometimes also called
अंधराज कहा जाता था. Their empire including much of what is today Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra का area. The Satavahanas has had several capital cities during their regions. उस टाइम पे रही थी उनकी बहुत सारी, जैसे अमरावती है. फिर उसके बाद और क्या हुआ इस टाइम पीरियड में? ट्रेड एंड कॉमर्स वर स्ट्रॉन्ग इस टाइम पीरियड में. किसके टाइम पीरियड में? दैट इज सतवनास. सतवहनास, यस. इस टाइम पीरियड में एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा पीरियड था आपका? आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तेलंगाना वाला एरिया. इस टाइम पे ट्रेड बहुत ज्यादा था. ट्रेड काफी अच्छा था. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड था. देयर कॉइन्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश तक इनके कॉइन्स फाउंड किए जाते थे, सजेस्टिंग अ वाइड नेटवर्किंग और ट्रेडिंग नेटवर्क. सम कॉइन्स इवन डिस्प्लेज इमेजेस ऑफ शिप indicating the importance of maritime trade and the presence of advanced ship buildings and navigation skills. तो उनके कॉइन्स में ये सारी चीजें और ये सारी सिंबल्स ये सब को बताया करते थे कि हम कितना इन सब चीजों में ट्रेड एंड मैरिटाइम ट्रेड में इंपॉर्टेंस देते हैं. सो यहाँ के कॉइन्स हुआ करते थे और कॉइन्स में इस तरीके से आपकी शिप्स वगैरह को शो किया जाता था. फिर उसके बाद एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा था. सो एग्रीकल्चर वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन द कृष्णा गोदावरी रिवर बेसन के साइड यहाँ पे, क्योंकि ये साउथ का वो वाला रीजन है तो यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसन भी है, तो यहाँ एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा था. अब देखते हैं लाइफ अंडर सतवनास के टाइम पे कैसी लाइफ थी. सो इन सतवनास कल्चर रॉयल चिल्ड्रंस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स के नेम पे रखा करते थे. फॉर इंस्टेंसेस गौतमी पुत्राज सतकर्णी was named after his mother गौतमी बला और बलाश्री के उसकी मदर के नाम पे उसमें इसलिए गौतमी पुत्रा नाम से उनका नाम रखा गया. तो यहाँ पे मदर्स के नेम्स पे उनके बच्चों का नाम लिखा करते थे. अनदर ग्रुप ऑफ इंस्क्रिप्शंस फाउंड करते हैं नन्हे घाट केव्स में नियर पुणे में. Talks about Satvana's queen, whoever as widows perform a major Vedic rituals including the अश्वमेधा यज्ञास, और यज्ञ उसने किया था वो विडो थी. उसके वैदिक गॉड सच एज इंद्रा, चंद्रा, सूर्य, ये सारी चीजें उनमें मेंशन की गई थी इस टाइम पीरियड में. The Satavahanas were strong followers of Yasudeva, another name of Krishna के काफी फॉलोवर थे. तो कृष्णा को काफी ये मानते थे. Though they supported their other religious traditionals को भी सपोर्ट करते थे, बट ये वासुदेवा को ज्यादा सपोर्ट करते थे. The regions of various schools of thought flourished. They often gave tax-free agricultural land to Vedic scholars, Jainas, monks and Buddhist monks, helping them to continue their learning and practice. By the 3rd century BC, Satavahana's empire broke into smaller independence. इसी तरीके से क्या होता है कि जब ये अलग अलग इंडिपेंडेंस में ब्रोक कर देते हैं तो इनका किंगडम टूट जाता है और वी हैव टू से जो इनका एरिया था वो फिनिश हो जाता है. Now coming to चेडीज. चेडीज के बारे में देखते हैं वो क्या है. Let's talk or let's take a step back. Do you remember the Kalinga war discussed in the Emperor? कालिंगा वॉर पढ़ा था, अशोका वाला कालिंगा वॉर. आफ्टर मॉडर्न एम्पायर वीकेंड होता था, कलिंगा इमर्ज्ड एज अ इंपॉर्टेंट पावर अंडर द रूल ऑफ चेडी डायनेस्टी के टाइम पे ये आया था. वन ऑफ देयर मेजर रूलर्स जो थे वो कौन थे? खारवारास were denoted followers of Jainism. He was sometimes called Vishu, that means राजा और a mock kings, जिनको इस सिस्टम से वो जाना करते थे. उसके बाद क्या होता है? वन ऑफ द के फीचर्स द हातिम inscriptions written in Brahmin scripts which detail the achievements of King Kharvarera years by years तक की इसमें पूरा का पूरा बताया गया है. Now kingdoms and life in south. साउथ रीजन में कैसी किंगडम थी, कैसी लाइफ थी इस टाइम की, ठीक है. So यहाँ क्या लिखा है? Another or in southern India, the period between the 2nd and 3rd century BC and 3rd century CE witnesses the rise of 3 influential kingdoms, जिनमें कौन थे? चेरास, चोलास and पांड्यास. ये सदन के मेन किंगडम्स हम माना करते हैं. So these kingdoms often
compete for dominance in the regions but also play a significant role in its growth, especially in the trade and culture development. देखिए ये तीनों साउथ के ही हैं और ये तीनों अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करते थे. सो यहाँ पे क्या किया करते थे? Recall how Ashoka Empire did not extend these आपने देखा होगा these southern territories such as mentioned in his edicts, indicating that they remain independent even during the peak of modern रूल. तो आओ एक एक के बारे में देखते हैं कि ये जो चोलास आपकी जो रीजन थे ये क्या थे. उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपकी जो यहाँ लिखी गई है. During this time, many poets emerged whose collective works became known as Sangam literature के नाम से उनको जाना गया, marking the era as Sangam age. So ये जो literature था संगम लिटरेचर के नाम से और हम इसको क्या देते हैं संगम एज भी है ये. सो द वर्ड संगम मीन्स कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड से आया है संगम मीनिंग एसोसिएशन और गैदरिंग रेफरिंग हियर टू अ असेंबली ऑफ पोइट्स. ये संगम एज मीन्स ये एक असेंबली है और कलेक्शन है और अ ग्रुप है किसका पोइट्स का. तो संगम लिटरेचर मीन्स जब एक साथ पोइट्स लोग आते हैं. संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट नोन बॉडी ऑफ वर्क फ्रॉम साउथ इंडिया का ये संगम लिटरेचर है. पूछेंगे संगम लिटरेचर कहाँ का? ये साउथ इंडिया का लिटरेरी वर्क है इंक्लूडिंग सेवरल anthologies of poetry and is a key source for historical study the society and culture of the time. तो आओ सबसे पहले हमारे चोलास के बारे में देखते हैं. द संगम टेक्स्ट, जो संगम मीन्स जो आपका सदर्न साउथ का जो टेक्स्ट था, द सदर्न और द संगम टेक्स्ट मेंशन 3 क्रोड किंग द चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में बताए हैं. तो चोलास क्या थे? द चोलास वर अ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी दैट ruled part of southern India from 3rd century BC till 13th century CE तक उसने रूल किया. यहाँ पे वेल नोन चोलास रूलर थे जिसका नाम था कारिकला. क्या है? कारिकला is said to have defeated a joint army of Cheras and Pandyas to assert his authority. So ये यहाँ पे इस तरीके से माना जाता था. अब यहाँ का जो चोलास में जो किंग थे that is Karikala initiated several major projects aimed at improving the lives of peoples. So यहाँ पे इन किंग ने काफी सारे इनिशिएटिव किए गए ताकि वहां पे वो लोगों की डेवलपमेंट्स को लेके काम करे. One of the most remarkable was the Kalani or a grand anti-cut of sophisticated water diversion structure built at a strategical chosen location just downstream of श्री रंगम आइलैंड के पास. ये जो एक वाटर डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर था ये काफी इंपॉर्टेंट था. कहाँ का? चोलास के टाइम पीरियड का. ठीक है. दिस सिस्टम हेल्प रीडायरेक्ट द वाटर ऑफ कावेरी रिवर टू द सेंट्रल एंड सदर्न एरियाज तक. जो कावेरी रिवर का वाटर फ्लो को डाइवर्जन किया गया. सो ये चीज इंपॉर्टेंट मानी गई जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे हम कहते हैं एज अ रिजल्ट इसी की वजह से कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाया, लीडिंग टू द रीजन्स कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ साउथ. द Kalani has become a repaired and restored many times over the centuries. इसको रिस्टोर वगैरह किया जाता है. ये चीज है, ये वाला चीज है जो कावेरी रिवर का पानी डाइवर्जन किया गया. फिर चेरास, वो तो हमने चोलास पढ़ लिए. ये है चेरास, ये भी साउथ का. अब इनके टाइम पीरियड में और इनके एरियाज में क्या डेवलपमेंट्स हुए और यहाँ पे मैप में भी आपको दिखाया हुआ है. ये देखिए आपके ये वाला मैप देखो. ये जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ये चेरास है जो अभी हम पढ़ेंगे. ये चोलास इधर के केरला वाले थे. ये चोलास, दिस इज चोलास. ये है पांड्यास आपके जो आपका व्हाट वी कैन कॉल तमिलनाडु वाला एरिया. ओके, ये एंड ये. ठीक है. तो अब आइए हम चेरास को देखते हैं. चेरास क्या है? तो यहाँ पे 2 चीजें याद रख लेना कि यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स और ये वाला प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे देखते हैं ऑल्सो नोन एज केरा और केलार पुत्रास और सन्स ऑफ केरला. ये कौन है? केरला के सन्स के नाम से जाना जाते हैं. कौन? चेरास. चेरास आपके माने जाते हैं. ये देखो, ये मैप में भी देख लेते हैं एक बार. चेरास का ये पूरा एरिया, हाँ, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ना,
ये येलो में भी इनको बनाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक ना चेरास का एरिया है, ये पूरा ये चेरास, दैट मीन्स जो आपका ये पूरा केरला वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला, समझे। और पांड्याज आपके तमिलनाडु वाला पार्ट आ जाएगा, एंड चोलाज ये रहा आपका, अभी हमने पढ़ा था ना, ये दैट इज योर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया, ये आपके इसके अंडर आ जाएगा। वही चीज आपने यहाँ पे पढ़ी भी थी, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेराज, जो आपकी केरला का है, जिसको हम क्या कहते हैं, सन्स ऑफ केरला। द चेराज रूल ओवर व्हाट इज नाउ वेस्टर्न तमिलनाडु एंड केरला वाला पार्ट जो है, तमिलनाडु का भी वेस्ट वाला पार्ट और केरला वाला पार्ट, ये आपके चेराज ने रूल किया गया था। विद इट्स कैपिटल वांजी इनकी कैपिटल थी। आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंट डे ऑफ कारूर in Tamil Nadu. They play a vital role in culture and economic history of the regions, supporting the developments of Tamil literature and sponsoring Sangam poets. तो यहाँ पे ये चीज हमें पता चल पाती है। अब यहाँ चेराज के टाइम पीरियड में हमें वहां के एरियाज में पता लग पाता है क्या था। सो द चेराज हैज फार रीचिंग ट्रेड लिंक्स विद रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया। दे export a wide range of goods such as spices, timber, ivory and pearls, making their kingdoms a key trade center for connecting India with distant land से connect हो पाए। फिर हमारा पांड्यास, क्या था वो पांड्यास, ये है आपका तमिलनाडु वाला एरिया की साइड, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया की साइड, और इसकी कैपिटल थी जो प्रेजेंट डे है मदुरई। ओके, सो यहाँ पे विद देयर कैपिटल इन प्रेजेंट डे मदुरई, दे रूल goes or their rule goes back several centuries before the common era. Over time, successive kings expanded the Pandya's kingdoms. The Greek ambassador Megasthenes in his work Indica में आप सभी को पता है, इन्होंने लिखा गया Pandyas as prosperous kingdoms with effective governance and active trade, both internal and distant places like Greece and Roman. So यहाँ पे पांड्यास के बारे में इंडिका बुक में लिखा गया कि किस इनके टाइम पीरियड में काम बहुत अच्छा था। इन्होंने बताया कि इनकी इफेक्टिव गवर्नमेंट थी एंड इनका जो कंट्रोल था, रूल थे, वो काफी अच्छे थे इस टाइम पीरियड के, इन्होंने बताया गया। नाउ अब देखते हैं इंडो, और वी कैन कॉल इन्वेजन्स ऑफ इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का इन्वेजन कैसे हुआ? सो आफ्टर अवर ब्रीफ एक्सप्लोरेशंस ऑफ सदर्न इंडिया, लेट्स return to north where different kinds of developments were taking place. Until now we have focused on native dynasties, but this period also saw the arrival of foreign rulers. यहाँ तक हमने चोरास, पांड्यास, चेरास पढ़े, ये सब हमारे कौन से थे? नेटिव डायनेस्टी थी, हमारे विद इन इंडिया की थी। अब इस टाइम पीरियड में फॉरेन इन्वेजन भी हुए, फॉरेन रूलर्स भी यहाँ पे आए, जैसे आपके ये है। So this movement began with the legacy left behind by the Alexander, who had briefly campaigned in the Indus Valley. When the withdrawal, he left regions governance. अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजर। सो फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जैसे मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता है, द नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज, व्हाट इज जो आपका पार्ट है किसका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी का, वो आपके इंडो ग्रीक यहाँ पे एंटर हो गए थे इस एरियाज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इसके रिच डाइवर्स कल्चर एंड लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो गए। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जांपल्स ऑफ दिस कल्चर एक्सचेंज इज द Helios pillars near Vidisha in Madhya Pradesh. This pillar named after the Indo-Greek ambassador who praised Vasudeva. हमने पढ़ा था, Vasudeva means the Krishna Bhagwan, जो referring him to as God of gods. The inscriptions of the pillars also outline three spiritual values: self-restraint, चैरिटी एंड अवेयरनेस, ये चीज बताता है। आर्कोलॉजिस्ट ने भी ये सब चीजों को फाइंडिंग किया जब उन्होंने इनकी कॉइन्स इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो उनको पता लगा इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। सो दीज कॉइन्स मेड द मटेरियल लाइक गोल्ड। ये लोग जो कॉइन्स बनाते थे इंडो ग्रीक, गोल्ड सिल्वर के बनाते थे, कॉपर के बनाते थे, निकल के बनाते थे। इनमें ज्यादातर किंग्स और उनके ग्रीक गॉड्स के तस्वीर होती थी इसमें। नाउ आप देखते हैं द राइज ऑफ कुशानास का कैसे राइज होता है, ये भी एक आपके फॉरेन इन्वेडर थे। द कुशानास ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया से थे, एंटर टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 2nd century CE में वो एंटर हुए। एट द हाइट ऑफ इट्स पावर देयर एम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया अक्रॉस वास्ट रीजन ऑफ
North India. Their rule marked a significant period of culture blending and left a lasting impact on Indian history. So आओ देखते हैं इनके टाइम पीरियड में भी काफी, और देखो ये स्क्रिप्ट भी पूरी लिखी गई है आपको। तो ये आपको चीज समझ में आ गई, ये जो थे ये कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया के थे, और इन्होंने क्या था इस टाइम पे एट द हाइट ऑफ देयर एम्पायर, द एम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया अक्रॉस वास्ट रीजन्स ऑफ नदर्न इंडिया तक ये पूरा एक्सटेंड हो गया। आपके सेंट्रल एशिया से लेके सोचो इंडिया तक इनका एम्पायर इतना एक्सटेंड होते होते पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये देखो कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ कनिष्का, ये कॉइन्स इस टाइम से one or on one coin Kanishka is shown holding spears title king of king and reverse show image of Buddha with the Scots। इस तरीके से यहाँ पे इनके कॉइन्स में दोनों चीजों का कनिष्का की फोटो रहती थी। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, द कुशानास कंट्रोल की पार्ट्स ऑफ सिल्क रूट एंड अंडर देयर रूल द ट्रेड फ्लरिश लिंकिंग इंडिया विद वाइडर एशिया कॉन्टिनेंट एंड द वेस्ट। इनके टाइम पीरियड में क्या चीज हुई, इन्होंने कनेक्ट किया इंडिया को विद द वेस्टर्न और वी कैन कॉल एशिया से पूरा कनेक्ट हो पाया। कंटिन्यूइंग अ ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक रूलर, कुशाना's art and architecture developed into two prominent schools, Gandhara and Mathuras. These styles were celebrated for blending Indian and Greek elements. Many sculptures from its time portrays a wide range of deities and symbolizing peace coexistence amongst diverse traditions. This period also marked the beginning of religious art that laid the foundations for temple architecture in later century में हुआ। तो आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें, ये देखो ये पूरा एरिया जिसके कंट्रोल था। अ मैप शोइंग द एंशिएंट वर्ल्ड ट्रेड रूट, पूरा ये ट्रेड रूट बता रखा है कि कैसे ट्रेड किया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी ये देखो ये फिगर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इट वाज आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश, इस टाइम पे कुशानास के टाइम पे संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश हुआ। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक द महाभारत एंड रामायण वर आइदर रिटन और शेप्ड इनटू देयर लास्टिंग फॉर्म में की गई। ये देखो ये सारे इस टाइम पीरियड के ही आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो ये चैप्टर भी हमारा ओवर होता है। होप सो इट इज क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।